Morning, students. As we had discussed, three sums till now. Two more sums we are going to see on shares. Then we will shift to debentures. Now, this sum on 1st April 2017, Mr. Vinay had 40,000 equity shares of rupees 10 each of Spectrum Limited, purchased at a cost of rupees 15 per share. He had purchased at a cost of 15 per share. On 1st May 2017, he purchased 10,000 equity shares of Satyam Limited. अब यहाँ पे देखो, पहला कौन सा है? स्पेक्ट्रम लिमिटेड है, और अभी सेकंड क्या है? सत्यम लिमिटेड. फेस वैल्यू ₹10 at ₹25 per share. On the same day, he also purchased 20,000 equity shares of Spectrum Limited at ₹12 each. Okay. On the same day, he also purchased 20,000 equity shares of Spectrum Limited at ₹12 each. On 1st July 2017, he sold 2,000 equity shares of Satyam Limited at ₹22 per share. Board of Directors of Satyam Limited announced right issue of equity shares in the ratio of 1 share for every 3 shares at ₹20 each. Full amount was payable by 31st August 2017. Shareholders were allowed to re-announce their right in a part or full. Means they can sell out their part or they can fully subscribe it. Mr. Vinay re-announced 40% of his rights at 5% per share. मतलब उसने 40% अपना बेच दिया, तो उसने खरीदा कितना? 60%. ये याद रखो. And subscribed for the balance. On 1st December 2017, Mr. Vinay sold 5,000 equity shares of Spectrum Limited and 2,000 equity shares of Satyam Limited at ₹30 and ₹27 per share respectively. You are required to prepare investment in equity shares of Spectrum Limited account and investment in equity shares of Satyam Limited account in the books of Mr. Vinay for the year ended 31st March 2018. यानी यहाँ पे हमें कितना बुक ऑफ अकाउंट्स बनाना है? 2 बुक ऑफ अकाउंट्स बनाना है, जो सत्यम और स्पेक्ट्रम लिमिटेड का होगा. और इसमें से हमें पूरा अपना जो पहले का एंट्रीज है, इसमें क्या नया है? खाली ये सब में दो अलग अकाउंट्स बनाने हैं. और सेकंड थिंग इसमें क्या नया है कि बोनस शेयर्स नहीं है इसमें, ओनली राइट्स इश्यू है. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? अभी ध्यान से हम लोग दोनों अकाउंट्स बनाने को लेते हैं. पहले फर्स्ट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ विनय, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ सत्यम पहला बना लेते हैं, हम स्पेक्ट्रम का पहला बना लेते हैं. स्पेक्ट्रम लिमिटेड और दूसरा अकाउंट बनाते हैं in the books of Mr. Vinay investment in equity shares of Satyam Limited account. वो स्पेक्ट्रम हो गया, ये सत्यम हो गया. अभी क्वेश्चन रीड आउट करते हैं. पहले क्या है? On 1st April 2017, Mr. Vinay had 40,000 equity shares of rupees
10 each of Spectrum Limited, purchased at rupees 15 per share. Opening balance कभी का है 1st April. 1st April 2017 टू बैलेंस कितना है उसके पास 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, मतलब 4 lakhs at the cost of 15 rupees. 40,000 into 15, that is 6 lakhs. Understood, all of you? Then on 1st May 2017, he purchased 10,000 equity shares of Satyam Limited. देखो क्या दिया है? On the 1st May, he purchased 10,000 equity shares of Satyam Limited, face value 10 at rupees 25 per share. तो 1st May, Satyam Limited में 1st May 2017 to balance कितने शेयर्स खरीदे उसने 10,000 मीन्स 10 रुपीज मतलब 1 लाख और कॉस्ट वैल्यू कितना है 25 रुपीज मतलब 2,50,000. अभी नेक्स्ट लाइन क्या दिया है उन्होंने on the same day he also purchased rupees 20,000 equity shares of Spectrum Limited at rupees 12 per share. तो on the same day मतलब 1st May 2017 to bank account कितना खरीदा उसने 20,000 मतलब 2 lakhs नॉमिनल वैल्यू एट रुपीज 12 मतलब 2,40,000. अब यहाँ पे उसने परचेज्ड था तो अब बैलेंस नहीं आएगा टू बैंक आएगा. सॉरी बैंक अकाउंट. Okay. Now, third entry. On 1st July 2017, he sold 2,000 equity shares of Satyam Limited. अभी उसने बेचा है Satyam Limited on 1st July 2017 by sales यानी by बैंक. कितना बेचा उसने 2,000 इक्विटी शेयर्स मतलब 20,000 नॉमिनल वैल्यू एट कॉस्ट ऑफ रुपीज एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 22 मतलब 44,000. अभी इसका हमको कॉस्टिंग का टेबल बनाना है. कॉस्ट ऑफ टेबल बिकॉज सी 10,000 था उसका वैल्यू 2,50,000 था उसने 2,000 बेचा तो हम लोग पहला कॉस्टिंग का टेबल बना लेते हैं. डेट particulars number of shares nominal value cost value.
we are doing the sum simultaneously. 1st May 2017. Purchase. नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 10,000. नॉमिनल वैल्यू कितना है 1 लाख. कॉस्ट वैल्यू कितना है 2,50,000. अभी हम लोग क्यों बना रहे हैं? बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस इन द सेल. रिमेंबर दैट प्रॉफिट एंड लॉस हमें देखना है, इसलिए हम लोग ये बना रहे हैं. अभी उसने क्या किया? 1st July he sold how many shares? 2,000. Cost value 20,000. करेक्ट. तो उसका एवरेज वैल्यू क्या आएगा वो हमें कैलकुलेट करना. ये हमेशा याद रखो. वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू. अभी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते समय हम लोग कैसे कर रहे थे कैलकुलेट लास्ट टाइम? सब याद है तुम लोगों को? अभी मेरे पास शेयर्स कितने हैं? 2,50,000 के 10,000 शेयर्स. तो उसका वैल्यूएशन कितना बेचा मैंने? 2,000 शेयर्स. कितना होगा? तो वैल्यूएशन होता है 50,000. क्या होगा? 50,000. The font size so that you will come to know. There also तो अभी 50,000 का वैल्यू था. बेचा कितने में मैंने उसको? 44,000 में. So whether it is a profit or loss, sold at 44,000. तो इट इज लॉस. अभी लास्ट सम तक हम लोगों ने क्या था? तभी हम लोगों ने प्रॉफिट के ही सम्स किए थे. अभी लॉस है. कितना लॉस है? 6,000. करेक्ट. अभी लॉस का एंट्री कहां पे आएगा? ऑन द क्रेडिट साइड. दैट इज 1st July 2017 by P&L कितना लॉस हुआ है? 6,000. कौन से कॉलम में आएगा? कॉस्ट कॉलम में. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? और यहाँ पे कौन सा वैल्यू लोगे तुम लोग? जितने में वो बेचा है. अभी बाकी बचा क्या? आप देखो. अभी नेक्स्ट एंट्री. ये समझ में आया सबको? हाउ आई हैव कैलकुलेटेड द लॉस एंड ऑल. ओके. नाउ वी विल रीड आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट. ये हो गया यहाँ तक ऑन इक्विटी शेयर सोल्ड. सत्यम का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ स्पेक्ट्रम लिमिटेड अनाउंस द राइट इशू of equity shares in the ratio of 1 share for every 3 shares held at ₹20. अभी कैलकुलेशन ऑफ राइट्स इशू. Calculations of rights issue. अब इसके पास टोटल कितने शेयर्स है? 40 + 20. 40,000 plus 20,000. That is 60,000. करेक्ट. अभी 60,000 शेयर्स है तो राइट्स इशू कितना आएगा?
उन्होंने क्या बोला है, रेशियो इज 1:3, तो 1 into 1 divided by 3, that is rights issue will be 20,000. But how much he is purchasing? Vinay subscribed. How much he subscribed? He subscribed 60% because 40% he has sold. So it will be 20,000 into 60%, that is equal to 12,000 shares. And the value will be rupees 2,40,000 because 12,000 into how much was the value of right shares? 20 rupees. Understood all of you? So the entry will come here. The date is 31st August. 31st August 2017. To bank account, as we are paying the amount for right shares. To bank account. Nominal value कितना हो जाएगा? 12,000 into 10, 1,20,000. और ये आ जाएगा 2,40,000. यहाँ तक सबको समझ में आया? I hope you are understood here. Now further we will see what it is given. Shareholders were allowed to re-announce their right part in or full to the outsiders. Vinay re-announced 40%, means 40% उसने बेच दिया of his rights at ₹5 per share and subscribed for the balance. मतलब 60% उसने claim किया. On 31st December, Mr. Vinay sold 5,000 equity shares of Spectra Limited and 2,000 equity shares of Satyam Limited at ₹30 and ₹27 per share respectively. अभी सबसे पहले हम लोग किसका देख लेंगे? स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम का कितना? 5,000 shares at ₹30. तो इधर आएगा 31st December, sorry, 31st December 2017 by बैंक. कितना बेचा उसने? 5,000, मतलब 5,000 into 10, 50,000. अभी कितने में बेचा उसने वो देखना है हमें. कितने में बेचा उसने? 30% रुपीज. तो 5,000 into 30, 1 lakh 1,50,000. अब यहाँ पे हमें उसका कैलकुलेशन करना है, प्रॉफिट हुआ क्या लॉस. अभी पहले देखो कितना शेयर्स है, वैल्यू इज इलेवन. चलो फॉर 40,000, 20,000 और 12,000. अभी टोटल यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ तुम लोगों को. टोटल शेयर्स हेल्ड, ये मेथड भी तुम लोगों को आना चाहिए, इज इक्वल टू 40,000 प्लस 20,000 प्लस 12,000, that is equal to 72,000. करेक्ट. उसमें से बेचा कितना उसने? 5,000. उसमें से बेचा है 5,000 और वो कितने में बेचा उसने? 30 रुपीज में. करेक्ट. तो अभी इसका वेटेड एवरेज निकालना है हम लोगों को. पहले इसका वैल्यूएशन टोटल कर लो. 72,000 शेयर्स का वैल्यू कितना हो रहा है? 6 लाख प्लस 6 lakhs plus 2, 8 plus 2, 10 lakh 80,000. So valuation
valuation we will calculate valuation now. In valuation कितना था 10,80,000 divided by how many shares 72,000 shares total है अभी अपने पास into कितना बेचा उसने 31st को 5,000 तो कितना आ रहा है वैल्यूएशन इट इज कमिंग 75,000 so whether it is profit or loss it is profit because बेचा कितने में 1,50,000 में और उसका वैल्यूएशन कितना है बेचा 1,50,000 वैल्यूएशन 75 तो प्रॉफिट कितना हुआ 75,000 प्रॉफिट ये साइड आ जाएगा 31st December 2017 to P&L अकाउंट नॉमिनल में कुछ नहीं प्रॉफिट है डायरेक्ट कॉस्ट में जाएगा 75,000 correct now I think we can close this accounts because और कुछ एंट्री है नहीं इसमें ये टोटल आएगा 7,20,000 यहाँ का टोटल आएगा यहाँ का टोटल आएगा 11,55,000 so here it will come 7,20,000 11,55,000 अभी 31st March 2017 by balance it will come 6,70,000 जो सबट्रैक्ट करके बचेगा और यहाँ पे आएगा 10,05,000 here we have completed spectrum अभी सत्यम का उसने कितने में बेचा he sold at we will see again the question part wait a minute student क्वेश्चन में देख लो he sold spectrum 2,000 equity shares at ₹27 oh no. Okay Satyam 2,000 at 27 Satyam at 2027 अभी सत्यम का आएगा on 1st December only 1st December 2017 बाय बैंक कितना बेचा उसने 2,000 मतलब 20,000 अगेन कॉस्ट वैल्यू कितना 27 रुपीज मतलब 2,000 into 27 54,000 अब उसका वैल्यूएशन निकालना है हमें प्रॉफिट है या लॉस है अभी अपने पास बचे कितने थे इसमें देखो बैलेंस पहला बेचा है ना उसने 8,000 शेयर्स बचे थे वैल्यूएशन 80,000 और यहाँ पे बचा था 2,50,000 में से लॉस हुआ हमें 6,000
नहीं, यहाँ पे तुम लोग डायरेक्ट भी ले सकते हो, यहाँ पे ऐसा बैलेंसिंग, क्योंकि एक ही परचेज है इसमें, 2 बार परचेज नहीं है, तो हमें एक ही बार लेना है, तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूएशन ले सकते हैं हम लोग। एवरेज कॉस्टिंग कुछ नहीं आएगा इसमें, तो कितना है वैल्यूएशन, 2,50,000 का शेयर्स था। यहाँ पे ये एक चेंज है, सब में याद रखो कि हमें वैल्यूएशन एवरेज नहीं आएगा। अगर परचेज सेल रहेगा तो एवरेज आएगा। यहाँ पे एक ही परचेज है और अभी डायरेक्ट सेल है, 2000, उसका वैल्यूएशन आया 50,000, बट sold at 54,000, so there is a profit of 4,000, तो यहाँ पे आएगा प्रॉफिट। 31st December 2017, sorry dear students, 31st December 2017 to P&L, कितना है प्रॉफिट, 4,000। Now we will close the accounts. Here also, here it is 1 lakh. Here it is 1 lakh. यहाँ का टोटल 2,54,000। यहाँ का भी टोटल 2,54,000। अभी बैलेंसिंग फिगर 31st March 2017, बाय बैलेंस 60,000, और यहाँ पे बाय बैलेंस आ जाएगा 2,54,000 में से 50, 50 और 54, 1,54,000 माइनस करेंगे तो 1,04,000 माइनस करेंगे तो आएगा 1,50,000। तो यार वी हैव कंप्लीटेड दिस सम। इन दिस सम बोनस शेयर्स नहीं था, खाली एक ही परचेज है, उसमें से सेल करते समय एवरेज नहीं आएगा और बाकी के इंटर्म्स। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सम। प्रैक्टिस और एक सम करेंगे हम लोग शेयर्स पे से, फिर बाद में हम लोग डिबेंचर्स का स्टार्ट